Good morning, students. Today we are going to explain your final and last poetry of your Flamingo book, and that is Aunt Jennifer's Tiger, composed by Adrian Rich. The poem addresses the constraint of married life a woman experiences. Actually, it is a feminist poem which is critical of the male world. Aunt Jennifer creates an alternate world of freedom in her art. The tigers of Aunt Jennifer's stitchings are representative of her desire of a free spirit, emphasizing the fact that she pines for freedom for her burdensome husband. So, students, let us read this poem and realize the pain, how much that lady was suffering from, and how she expressed his grief through the poem. So, the first verse of the poem is Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. A screen is a frame on which Aunt Jennifer just knitting something else, and over there that frame she made a tiger. That tiger is prancing, jump over. Bright topaz denizens of a world of green. आंट जेनिफर एक कढ़ाई कर रही है फ्रेम में, और उस कढ़ाई में वो उछलते कूदते हुए निर्भय जंगल में रहने वाले वर्ल्ड ऑफ ग्रीन टाइगर्स को वो बुन रही है. दे डो नॉट फियर द मैन बेनेथ द ट्री. और वो टाइगर्स बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं जो आदमी उधर हैं उनसे. यू कैन लुक इन दिस पिक्चर. दिस इज द फ्रेम. दिस इज द frame on which tiger has been knitting through the wool. And उधर जंगल में जो ये जंगल के निवासी हैं टाइगर्स किसी से भी नहीं डर रहे हैं. They do not fear the men beneath the tree. पेड़ों के पास जो मोस्ट प्रोबेबली हंटर वगैरह हैं उनसे इन टाइगर्स को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है. दे पेस इन स्लिक चिवालरिक सर्टेनिटी. ये टाइगर बहुत ही शौर्य के साथ, निश्चिंतता के साथ, बहुत सौम्यता के साथ धीरे धीरे जा रहे हैं. उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है कि उधर हंटर खड़े हैं या उनका शिकार हो सकता है. ब्राइट टोपाज डेनिजेंस. ब्राइट टोपाज को कंपेयर किया गया है टाइगर के कलर से, क्योंकि वो भी उनका भी कलर ब्राइट टोपाज जो होता है उसका कलर येलो होता है, और ठीक उसी तरह टाइगर्स का कलर भी येलो कलर होता है. तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टाइगर्स कलर एंड टोपाज कलर. Denizens. This particular figure shown as denizens. It means that this forest is the habitat of these
brave tigers. Even this hunter can't able to made him fearsome. हंटर की प्रेजेंस में भी ये टाइगर्स बिल्कुल भी डरते नहीं हैं. In another words, it can say that tigers are so brave and heroic. They don't have care about the hunter. Chivalric certainty. You can see how carefree and very soft, without any confusion. They were freely moving. It showed the heroism in the walk of the tiger. In the next stanza, Aunt Jennifer's finger fluttering through her wool, find even the ivory needle hard to pull. आंट जेनिफर जो फ्रेम पे निटिंग का वर्क कर रही है, ऊन को पकड़ करके आइवरी के निडल से वो कुछ खींच के बुन रही है, तो वो भी उसकी उंगलियां भी फ्लटर कर रही हैं, कांप रही हैं. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. दरअसल आंट जेनिफर के हाथों में जो मैसिव वेट है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो अंकल के शादी के बाद जो उसकी अनकन्वेंशनल अनहैप्पी मैरिड लाइफ है, उसका भार उसके हाथों के माध्यम से देखा जा सकता है. वो कितनी दुखी है, कितनी पीड़ित है. वेडिंग बैंड विवाह का जो उसकी एंगेजमेंट रिंग वगैरह से संबंधित है, विवाह की स्थिति से रिलेट किया गया है. तो आंट जेनिफर के हाथ जो कांप रहे हैं वूल को खींचते समय, ऊन को खींचते समय, उस फ्रेम को डिज़ाइन बनाते समय, वो इस बात को दर्शा रहे हैं कि आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल कर रही है, उसको बहुत सी प्रॉब्लम है, उसके हाथ पूरी तरह से आतंकित हैं, टेरिफाइड हैं, डरे हुए हैं. You can look how lightweight this ivory needle have, but due to massive weight of uncle's wedding band, अंकल के अत्याचार के कारण जो भार वो ढो रही है महिला, उस कारण से, उस डर से उसके हाथ कांप रहे हैं. इतनी पतली और हल्की चीज़ को भी वो प्रॉपरली नीट नहीं कर पा रही, प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही. उसके हाथों में डर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. Actually, she was representing his ideal tigers on the frame because she was facing problems. She symbolized tigers as a heroic character which she expects from herself but unable to show the heroism. टाइगर जो शूरवीर होते हैं, निश्चल होते हैं, निडर होते हैं, उनको किसी भी इंसान से कोई डर नहीं लगता. ये दरअसल आंट जेनिफर के आदर्श हैं, उनके लिए एग्जाम्पल हैं. आंट जेनिफर ऐसा चाहती है, बट उन अंकल के वैवाहिक
अंकल से विवाह होने के बाद वह विवाह के जो भार से, विवाह का जो अत्याचार है उसको झेल करके इतना पीड़ित हो गई है कि अब उसके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं रह गया है। वो पूरी तरह से डरी हुई है। साहस का लेस मात्र उसके पास नहीं है। साहस वो अपने मन के अंदर खोए हुए जो साहस है उसको टाइगर के माध्यम से स्क्रीन पे, फ्रेम पर वो गढ़ रही है। You can look the magic band. It is a symbol of marriage, you know. It shows the irony of a woman who is suffering from the married life. Aunt Jennifer's fingered through her wool. Even ivory needles hard to pull. हल्के हाथी दांत से बने हुए तीलियों को, जिससे वो निटिंग का काम, बुनाई का काम कर रही है, उसको प्रॉपर वे में मूव नहीं कर पा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर प्रॉब्लम्स, हर फिजिकल प्रॉब्लम्स, हर मेंटल प्रॉब्लम्स. It's so suffered, so harassed. In the last and final stanza, Adrian Rich says that when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals. She was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. जब आंट जेनिफर की मौत हो जाएगी, जब वो मर जाएगी, तो उसके डरे हुए हाथ वैसे ही रहेंगे, स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स. वो जिंदगी भर दुख दर्द झेलती रहेगी, पीड़ा झेलती रहेगी, अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करती रहेगी. शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्योंकि वो गुलाम बन चुकी है वैवाहिक जीवन में आकर के. विवाह हो जाने के पश्चात वो गुलाम बन चुकी है, मास्टर्ड हो चुकी है अपने हस्बैंड का. अपने हस्बैंड के द्वारा वो गुलाम बनाई जा चुकी है. तो वो जिंदगी भर जब तक जीवित रहेगी, मर जाने के बाद भी जो है उसके हाथ, डरे हुए हाथ उससे जुड़े रहेंगे ऐसे ही. और दूसरी तरफ द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन prancing proud and unafraid. जो पैनल पे उसने टाइगर्स को ड्रॉ किया है निडल और वुल से, वो ऐसे ही बहादुरी पूर्वक, गर्व के साथ, बिना डरे हुए उछलते कूदते रहेंगे. So throughout this poem, Adrian Rich has raised the problem of women's. The last stanza, poet says that when aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with the ordeals she was mastered by. But her art work, which was her escape route, or in a way her inner sense of freedom, will stay forever proud and unafraid. So it is a very sensuous and masterful, ironical poem. Definitely it evokes something else from inside. Thank you and have a nice day.